Good evening and welcome everyone on this session on Indian polity for Article 15 and 16. We left our previous discussion on Article 13, Doctrine of Eclipse. Certain sections of Article 13, Clause 1, Clause 2 are still to be covered. So we'll cover that, and then Article 14, one of the most important articles in the Constitution of India. Equality before law versus equal protection of laws will be covered in this class. So let's get started without much ado. तो आज की क्लास के दौरान जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके जैसे कि जो सेलियंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 के इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. स्टार्ट करते हैं जस्ट in another 5-10 seconds. Let me have a look at your comments. Okay, fine. So I can see your comments now. Dakshita, Priyanka, Studious, Isha, Vivek and others. Alright, let's get started guys. So the topic of fundamental rights, ये हम सब देख चुके हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं, हाउ कैन वी थिंक ऑफ स्विचिंग बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म, व्हाट इज अ राइट, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें. These are the fundamental rights are fundamental for human existence. This is something we have covered already. Difference between fundamental rights, constitutional rights and legal rights. तो ये भी सबको clear होना चाहिए. Then fundamental rights in India act as a limitation not only on the powers of the executive but also on the powers of legislature. Judiciary does not come under the definition of state, Article 12 of the Constitution of India. Article 12 का rigorous analysis हमने किया था उस पिछली क्लास में. BCCI, Board of Control for Cricket in India, all these things have already been covered. Then in this part, unless the context otherwise requires, ये भी हो गया था. Case law क्या है? BCCI is not financially, functionally or administratively dominated by government of India or control of any other government, right? तो ये case history हमने देखी. Functional control or administrative control, these are the criteria, right, to be followed for Supreme Court or for otherwise any other authority to determine whether a body is a constitutional body, whether a body comes under the definition of state or no, right? तो ये सारा कुछ कवर हो गया था. अब आगे चलते हैं. Existence of deep and pervasive control. Existence of deep and pervasive control is a criteria. ये हो गया था. Sovereign functions, definition of public authority under RTI Act was also covered, right? Definition of public authority. Then should there be reservation in PPP insofar as the governments are resorting to PPPs for even sovereign functions? तो privatization of, insofar as the privatization of sovereign functions is happening, सॉवरेन फंक्शंस में भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. तो क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन का ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16, इसको कहने को रिजर्वेशन के लिए हाहाकार है, कहने को हर नेता ये कहता है कि आरक्षण ज़रूरी है ताकि उस नेता का, उस पॉलिटिशियन का राजनीति में आरक्षण बरकरार रहे, ठीक है, उनका रिजर्वेशन चलता रहेगा ताकि वो इलेक्शन जीतते रहें, ठीक है. लेकिन इज इट नॉट बीइंग गिवन अ डिसेंट बरियल इन सो फार एज, जहाँ तक ये सवाल है कि आर्टिकल 16 के होने के बावजूद भी लगभग सभी पब्लिक सर्विसेज को, गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है. बात समझ में आई? मतलब ये चीज़ को समझना एक एनालिटिकल पॉइंट है कि कहने को आप ये कहते हो रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन. एवरी पॉलिटिशियन, एवरी टॉम, डिक एंड हैरी, इन ऑर्डर फॉर हिम टू बिकम अ पॉलिटिशियन टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन. जैसे कि मिस्टर हार्दिक पटेल, ठीक है, अपने तो बन गए नेता, लेकिन जो सड़क पे लगा रहे थे नारा, वो छानते रह गए रेता या फिर बालू. समझ में आया? खुद तो चले गए. तो रिजर्वेशन की राजनीति को थोड़ा सा समझेंगे. क्या रिजर्वेशन इन पीपीपी प्रोजेक्ट्स, जहां पे सॉवरेन फंक्शंस हैं, जहां पे सिटीजन की बेयर मिनिमम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उन चीजों को, क्या उन सेवाओं में, उन पब्लिक सर्विसेज में जहां सॉवरेन फंक्शंस की उम्मीद करता है सिटीजन, वहां पे ठीक है, सिटीजन इज अ क्लाइंट, ठीक है. सॉवरेन फंक्शंस में रिजर्वेशन इसलिए लाया जा रहा है कि वो सॉवरेन फंक्शंस में
प्राइवेटाइजेशन इसलिए लाया जा रहा है कि एज अ सिटीजन इट इज माई राइट टू अवेल ऑफ गुड गवर्नमेंटल सर्विसेज फॉर गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस इज माई राइट, आई अग्री, ठीक है. बट इन द प्रोसेस ऑफ गुड गवर्नेंस, अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस, तो प्राइवेटाइज करके 90% वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्यों फिलअप किया जा रहा है? इज इट नॉट लाइक आर्टिकल 16 को डिलीट तो कर नहीं सकते, क्योंकि रिजर्वेशन फिर पॉलिटिक्स में ख़त्म हो जाएगा. नेता वो रैट हु विल बेल द कैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द पॉलिटिक्स. इसीलिए रिजर्वेशन को आप डिलीट तो करोगे नहीं, पॉलिटिकल क्लास डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को डिलीट या रिफॉर्म की बात करेगी उसको अगले चुनाव में, इलेक्शन में हरा दिया जाएगा. इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि एक तरफ रिजर्वेशन के नारे लगवाते रहो और दूसरी तरफ सर्विसेज को प्राइवेटाइज करते रहो. इट इज लाइक हॉलोइंग द हार्ट एंड द सोल आउट ऑफ आर्टिकल 16 and at the same time maintaining it, carrying it as a decorative piece. ठीक है, चुनाव के लिए. इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि रिजर्वेशन के साथ साथ पब्लिक सर्विसेज वैकेंसीज ही खत्म होती चली जा रही हैं. रेलवेज में 13 लाख के अराउंड 13,64,000 वैकेंसीज आई मीन सैंक्शनड पोस्ट हैं, लेकिन उसमें से अभी 9 लाख ही चल रही हैं. धीरे धीरे से ये भी कम हो जाएंगी. अराउंड 4 to 5 लाख जो रेलवे की वैकेंसीज हैं उन्हें फिलअप ही नहीं किया जा रहा. एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज पोस्ट्स आर दोज विच वर प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय आर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, SC, ST एंड OBCs, खासकर SCs. ठीक है, ग्रुप D या ग्रुप C जॉब्स जिन्हें कहा जाता है. तो एक वे से रिजर्वेशन को धीरे धीरे से खत्म किया जा रहा है. समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं. एफिशिएंसी के नाम पे आर्टिकल 335 के नाम पे प्राइवेट सेक्टर को जस्टिफाई भी किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सर्विसेज में, सॉवरेन फंक्शंस में, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को ला रही है. इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोनी, भारत नेट और उड़ान स्कीम में प्राइवेट सेक्टर योगदान इसलिए दे रहा है क्योंकि बेहतरीन सर्विसेज, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज कुड बी गिवन टू दी सिटीजन्स. ठीक है, ये समझ में आया? तुम लोग हाजिरी लगाओ. बीच में कुछ लोग गायब हो गए हो. इंडिपेंडेंस डे तुम्हारा एक्सटेंडेड चल रहा है, वैलेंटाइंस डे के लिए भी कुछ रख लो एक्सटेंडेड. आई कैन नॉट सी सम ऑफ द यूजुअल नेम्स हियर, सो दैट्स व्हाई माय दीज वर्ड्स आर जस्टिफाइड. फटाफट से हाजिरी लगाओ. शाबाश. Everyone means everyone, please. All right. Fine guys, ठीक है. Now ये पॉइंट समझ में आया? आर्टिकल 16. अभी आर्टिकल 15-16 को समझेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर होगा. तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, insofar as they are not in sync with, if they are not in sync with fundamental rights, to the extent that they are not in sync with fundamental rights, they would be declared as nullified. Article 13 clause 2, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. Which part is it? Part 3, fundamental rights. And any law made in the contravention of this clause shall, to the extent of contravention, be void. ठीक है, उस हद तक जिस हद तक वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है. ये समझ में आ गया था. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में हमने बात करी थी. द कोर्ट सेड दैट द लॉ बिकेम वॉइड नॉट इन टोटो और फॉर ऑल दोज पर्पसेस, फॉर ऑल पर्पसेस. ऐसा नहीं है कि पूरी पर्पसेस के लिए लॉ वॉयलेट हो जाएगा, नहीं. all the times or all the persons, but only to the extent of such inconsistency, that is to say, to the extent it became inconsistent with the provisions of the part 3 which conferred the fundamental rights on the citizens. Clear? तो ये सब चीजें हैं. Then doctrine of eclipse derived from article 13 clause 2. Pre-constitutional laws
कुछ इस तरह से डोरमेंट हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट टू विच दे trample or to which they compromise with our fundamental rights. All the laws, pre-constitutional and post-constitutional laws, have to conform to our part 3 of the constitution, the most important part of the fundamental rights. सबसे ज़्यादा अहम जो part है उसको confirm करना ज़रूरी है fundamental rights के लिए. Is it clear? Clear? So this is there. Now let's proceed to the next level. Equality before law and equal protection of laws. The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Difference between equality before law and equal protection of laws. ये भी हमने समझा था. Equality before law ये कहता है nobody shall be given a special treatment by virtue of his or her religion, race, caste, sex, place of birth and equal treatment of all the classes by the law. किसी को भी अनइक्वल या इनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता. एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नोबडी शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. ठीक है, बट हमने जो आर्ग्यूमेंट समझा बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग का, अब अगर इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो इट विल बी लाइक ट्रेवेस्टी ऑफ TRAVESTY. इट विल बी लाइक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, यानी कि अन्याय ज़्यादा हो जाएगा और न्याय कम, क्योंकि ये उल्टे ह्यूमन है. मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, ही इज़ अ पेटी ह्यूमन बीइंग, द ड्राइवर. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. इट सेज दैट वी शुड अप्लाई द लॉ इक्वली इवन इफ द सर्कमस्टांसेस आर अनइक्वल. ये तो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस हो गए, है ना. अब इनके पास बाउंसर्स हैं, राम जेठमलानी है, उनके पास श्री राम हैं, राम भरोसे जिंदगी है. ठीक है, अब अगर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें धमकी देते हैं, इफ द बाउंसर्स ऑफ सलमान खान दे थ्रेटन द अदर पर्सन, द ड्राइवर ऑफ सलमान खान इन द ब्लैक बक हंटिंग केस. ठीक है, अब ये इनके ड्राइवर हैं जो कि चश्मदीद गवाह हैं. बिना चश्मे के गवाह को चश्मदीद गवाह बोला जाता है. ठीक है, तो विटनेस, आई विटनेस को थ्रेटन करने के जुर्म में ये गायब हो गए. इन्होंने जो कोर्ट में गवाही दी राजस्थान हाई कोर्ट में, उसके बाद ये पलट के नहीं आए. अब इन्हें विटनेस टर्न्ड हॉस्टाइल के चार्जेस पे पुलिस ढूंढ रही थी. ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस को पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन ये मिले नहीं. क्यों नहीं मिले? क्योंकि सिफारिश थी अगर ये मिल जाएंगे, पुलिस इनको मारेगी पीटेगी तो शायद ये बोल देगा कि हाँ मैंने इसको देखा था, इन्होंने मुझे धमकी दी, इसीलिए मैं गायब हो गया. तो 1.5 साल के बाद जब फाइनल सुनवाई की बारी आई, ही रीअपियर्ड फ्रॉम समवेयर. दोबारा से ये प्रकट हुए भगवान राम की कृपा से, और इन्होंने बोला कि मैंने इनको देखा है. तो प्रेस रिपोर्टर थे, कौन से टीवी के? NDTV के. NDTV के प्रेस रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भाई कहाँ गए थे? तो इन्होंने बोला कि हम बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, क्योंकि ये वाले जो बंदर हैं इन्होंने धमकी दी थी, इनके बाउंसर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर कोर्ट गए उसके बाद भगवान को प्यारे हो जाओगे. तो दिस कैन बी एडमिटेड एज अ प्रूफ कि हाँ मुझे थ्रेटन किया गया था. दिस प्ली वॉज टेकन बाय द पेटी ड्राइवर एंड द राजस्थान हाई कोर्ट एडमिटेड दिस प्ली ऑफ द ड्राइवर that yes, if a petty eyewitness, if a poor eyewitness turns hostile and later on cites the reason of the muscle power of the accused as the reason for his hiding or going hostile, then that plea could be, that reason could be admitted in the court of law as a defense. तो ये हुआ equal protection of laws in equal circumstances. We have understood this fairly well. Afreen, I answered everybody's query. मेरे पास दिन में 2 ही घंटे थे, आपको मेरा भी थोड़ा सा समझना होगा. काउंसिलर इज ऑन लीव, शी वुड बी बैक ऑन 20th. ओके, तो तब से ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. क्लियर? सो मैं एक एक करके सारे मैसेजेस आंसर करता हूँ. वैसे ही कोशिश रहती है कि आंसर कर दूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाते. आज आई वॉज थिंकिंग ऑफ बंकिंग दिस क्लास, बट सोचा कि नहीं, रेगुलरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. आई गॉट टायर्ड, बट देन आई मेड अप माई माइंड कि क्लासेस की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे, तो DNA इसी चक्कर में मिस हो गया. सो नो फेवरेटिज्म एट ऑल. इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इग्नोरिंग दी
circumstances of the person. Equality before law अगर हम strictly लगाएं तो हमारी कंट्री में देखो, now you are preparing for UPSC, you cannot be the people like जो न्यूज़ मीडिया में चलता है वो सबको इग्नोर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ circumstances while awarding death sentence to the accused in the rape, Delhi gang rape or other rape cases or other heinous crimes. Aggravating factors AGGRAVATING and mitigating circumstances. Supreme Court, before awarding the death penalty in rarest of the rare crimes, also applies this. If the accused committed the offense of rape in a gang, तो गैंग रेप के लिए ये माना जाएगा कि हाँ अग्रवेटिंग सर्कमस्टांस है कि एक गैंग में क्या किसी का भी दिमाग काम नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं. इफ द एक्यूज्ड वाज ड्रंक, ठीक है, इसको भी गलत माना जाता है इस वजह से कि आप लोग दारू पिए हुए थे. जो 5 कन्विक्ट्स थे, जो 5 एक्यूज थे, उनको ये कहा गया यू वर ड्रंक, ओके, तो दिस बिकम्स अनदर रीजन दैट यू शुड बी अवॉर्डेड डेथ पेनाल्टी. डेथ पेनाल्टी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें कंसिडर करता है. दूसरी तरफ वन ऑफ द एक्यूज्ड पर्संस इज द लोन सन ऑफ अ विडो मदर, यानी कि इस बात की वजह से उसे फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उस बेचारे की मदर जो हैं विडो हैं. दूसरा, हिज मदर was beaten up by his father. He was a witness to everyday violence, domestic violence at his home, at his house, in which the mother was thrashed with the sticks every day. So doing that heinous offense was not something unusual to him. It was something like normal कि ठीक है इतना तो चलता ही है. तो जब कोई घर पे ऐसी वॉयलेंस देख के आया हो, इसमें किसकी गलती है? गलती है स्टेट की, कि स्टेट जो चारा खा गई, लालू प्रसाद यादव जो चारा खा गए, अगर उन्होंने इस बेचारे के लिए स्कूल बनवाया होता तो शायद ये एक सॉबर एटमॉस्फेयर में पला बड़ा होता है ना. तो इसीलिए ये सर्कमस्टांसेस को ये सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि पर्सन वाज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस सोडोमी बाय हिज फादर, मतलब उस लड़के के पिता उसके साथ में सेक्स करते थे बचपन में, ठीक है, लड़का होने के बावजूद. तो सोडोमाइज और ये सब किया गया. फिर उसके बाद उसके वहाँ पे ये वॉयलेंस वगैरह, स्कूल दूर दूर तक नहीं था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स. तो दिस गाय इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द फेलियर्स ऑफ द स्टेट. अब उसके लिए सिर्फ उसको सजा देना ये गलत होगा. बाकी चारा घोटाला वाला और बाकियों को कैसे ढूंढा जाए? इनडिटर्मिनेबल है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये लिस्ट बनाता है. क्या मनु शर्मा जैसे लोगों के और इस आदमी के सर्कमस्टांसेस सेम थे? नहीं. अगर मनु शर्मा जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी रेप करता है या फिर कुछ ऐसा महिला को मारता है, जैसिका लाल को या कुछ ऐसा, तो वो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस है. अ वेल एजुकेटेड माइंड, इफ इट इज दैट पर्सन इज कमिटिंग सच अ हीनस क्राइम. समझ में आया? तो ये एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कहां से लाया सुप्रीम कोर्ट? क्या ये लॉ में दिए गए हैं? नहीं. क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम डॉक्ट्रिन दैट द अवार्ड ऑफ डेथ पेनाल्टी वुड बी अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, whether it is given in the law, IPC? No. Supreme Court has invented these things under the equal protection of laws in equal circumstances. यानी कि law should be equally protected provided the circumstances are equal. If the circumstances are unequal, then law should not be applied equally. मैंने आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ये अभी भी ये हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस का. सिंगापुर या बाकी कंट्रीज में क्या होता है, आपकी इनकम के बेसिस पे आपका ट्रैफिक का चलान होता है. बताया था. आगे चलते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया ये सबको? किसी को कोई डाउट, कोई आपत्ति, कोई चिंता?
कृतिका डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला खुला घूमे, रेप करना अलाउड है ऐसे को? देखो, मैंने बोला कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या आपकी गलती नहीं है इसमें? क्या आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है जिन्होंने ऐसे नेता को वोट दिया जिसने स्कूल नहीं बनवाए और वो चारा खा गया? बताओ, समझ में आया? हमारी एज अ, क्या आपकी गलती नहीं है कि आज तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होते या कुछ होता तो आप ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देते, है ना? क्या आपकी गलती नहीं है कि आप वोट दे के ही नहीं आते? क्या मेरी गलती नहीं है कि मैं यहाँ दिन भर पढ़ाते रहता हूँ और देश में क्या चल रहा है उसको नहीं देखता? समझ में आया? इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ वन पर्सन हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सच अ रेप, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी से अलग था, कहीं दूर से आया था, है ना, तीसरे गोले से आया था, यहीं का ही था ना? तो अगर वो यहीं का था, अगर वो गलतियां कर रहा है तो फिर उसमें हमारी भी तो गलती है. अब ये देखना कि वो देखो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है ना, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, डॉग लॉ, बेंथम, जेरेमी बेंथम ने ये कहा था कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो बेंथम्स डॉग लॉ के अनुसार चलता है. जैसे एक डॉग गलती करता है तो उसको अखबार से मारा जाता है, चाबुक से मारा जाता है, वो दोबारा गलती नहीं करेगा. इफ़ वी आर ट्रीटिंग आवर ह्यूमन बींग्स लाइक दिस तो पर्पस डिफीट हो जाता है. मोर ऑन दिस इन आर्टिकल 21. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. तो द बैलेंस ऑफ लॉ हैज टू टिल्ट इन दिस मैनर इन फेवर ऑफ द disadvantaged. Real justice is when the real justice would be done when the statutory, the legal provisions are tilted in favor of the disadvantaged. लीगल प्रोविजंस को अगर डिसएडवांटेज लोगों की फेवर में झुकाया नहीं जाएगा तो फिर तो कानून अमीरों का रह जाएगा. अमीर राम जेठमलानी को हायर करेगा और गरीब हे राम काहे को दुनिया बनाई, वो वाला काम हो जाएगा, है ना. Doctrine of equal protection of law says that law has to tilt in favor of the relatively disadvantaged. फटाफट से थोड़ा सा चलेंगे. Logical corollary, if the circumstances are unequal, positively unequal or negatively unequal, unequal treatment could be provided so as to create at least a feeling of semblance of equality कि चलो ठीक है, हाँ बराबरी का इंसाफ हुआ है. ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा. तो हमारे यहाँ पे क्या है, एन आई फॉर एन आई काइंड ऑफ अ जस्टिस सिस्टम वुड मेक दी सोसाइटी गो ब्लाइंड. आंख के बदले आंख अगर ली जाएगी तो पूरा समाज अंधा हो जाएगा, बोलते हैं ना. लेकिन कानून का फेयर होना भी ज़रूरी है. रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हीनस ऑफ द हीनस क्राइम्स के केस में सज़ा मिलेगी, लेकिन प्रोसेस ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी इक्वल. ये एग्रवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की लिस्ट बनाना, चाहे अजमल आमिर कसाब क्यों ना हो, हमारे सिस्टम में ऐसा किया जाता है, इसीलिए हमारा सिस्टम अच्छा कहलाता है. दैट इज़ वाई वी आर कंसिडर्ड टू बी अ सिविलाइज्ड society. Examples of contemporary relevance so as to enhance your understanding. National Food Security Act. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दो तरह की क्लासेस हैं. एक जो एलिजिबल फैमिलीज हैं जिन्हें बीपीएल फैमिलीज कहा जाता है, दूसरा अंत्योदया अन्न योजना. अंत्योदया अन्न योजना वाले बेनिफिशरीज को थोड़ा ज़्यादा राशन दिया जाता है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर इक्वल सर्कमस्टांसेस इज अप्लाइड not only in the case of criminal law but it is applied in the case of civil welfare oriented laws as well. समझ आया? यहाँ पे कुछ लैग आया ही नहीं जो मैं समझाऊँ इसको. 1 second, some of the frames are dropping, just 1 minute. How are we measuring crime here? Rape as in how are we measuring the intensity? No, rape as in if the crime is rarest of the rare. Now you can ask, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसा ये नहीं बताया कि कितना पेनिट्रेटिव होगा रेप तो माना जाएगा विद ड्यू सेंसिटिविटी. मतलब समझ रहे हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अटकलें हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं कि
कोई जो है बच के भी निकल जाए, राइट, और कोई नाजायज़ भी फंस जाए। इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सेप्ट बाय द विक्टिम ऑफ द क्राइम। वो सेंसिटिविटी अगर सभी में आ जाएगी तो फिर तो मतलब अगर जजेस में भी आ जाएगी तो फिर जजेस खुदा हो जाएंगे, जो कि वो है नहीं, ठीक है। अब ये तो देखो हिट एंड ट्रायल, ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से ही डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का जो है क्राइम था और कितना नहीं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, हु इज गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर? इट इज द जुडिशरी। मोर ऑन दिस इन द क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी, which is the criticism is running into 5, 10, 15 points, so we will see to that as well at the relevant juncture, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ तमिलनाडु डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस आउटसाइड द स्टेट। अब शशि कला ने दिखाई ऐसी कला कि जयललिता की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी, ठीक है। तो शशि कला का जो केस है, क्योंकि तमिलनाडु में उनके टेन्योर, शशि कला की फ्रेंड यानी कि जे जयललिता, ऑनरेबल द ग्रेट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के दौरान काफ़ी जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी स्टेट पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज में। अब अगर उनकी केस की सुनवाई, शशि कला के केस की सुनवाई या जयललिता के केस की सुनवाई अगर तमिलनाडु में होगी तो जजेस उनकी तरफ बायस्ड होंगे। जिनका अपॉइंटमेंट उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है वो तो नेचुरली प्रो शशि कला जजमेंट देंगे, इसलिए इनका जो केस है इसे कर्नाटका में शिफ्ट कर दिया गया। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, ओके। जीएसटी टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, लोअर टैक्स ऑन आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन, police protection to whistleblowers, because of equal protection of laws only the court sometimes takes a sympathetic view of the circumstances of rape convicts, जो मैंने अभी समझा दिया, poverty, illiteracy, aged mother, ठीक है। तो yes, you are right, no, I'm talking about, see, Arshika and others, निथारी किलिंग या ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ, जस्ट इन दिस केस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द विमेन एंड द सोसाइटी एंड यू गाइज, जैसे कि निर्भया रेप केस में जो रॉड वाला जो फिनोमिना हुआ, ये सब चीज़ें जो कि काफ़ी दुखद हैं अपने आप में, तो इनको सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि क्या हीनस ऑफ द हीनस क्राइम्स होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। GST tax discrimination, police protection to whistleblowers, because of EPL only the court sometimes takes a sympathetic view. In order for law to operate equally amongst all, law should be predictable, my analysis says. But here the point that you guys are trying to say, but here judiciary's own performance is found wanting because of the case law, the evolving cases, number of cases as it evolves with the successive judgments of the Supreme Court is inconsistent. Example, judiciary stand on preamble being a part of constitution. Example, rarest of the rare crimes. देखो, मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को बहुत लॉजिकली आंसर कर रहा हूँ, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो स्ट्रेच कर सकते हैं। दैट इटसेल्फ इज़ अ डिबेटेबल इशू, जिस केस पे बहुत सारी कोर्ट्स, ये यू नो कॉलेजेस वगैरह में डिबेट्स होती रहती हैं। विक्टिम इज़ द ओनली थिंग, विक्टिम, why the victim compensation scheme has been brought about. State is supposed to give to the victim of acid attacks ₹5 lakh. क्यों ऐसा है? State accepts the fact that the convict is a product of state's failure, ठीक है। convict, आप आज क्यों सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो? पहले क्यों नहीं हुई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, राइट? क्यों कर रहे हो? इंटरनेट है, फैसिलिटेटरी एनेबलिंग कंडीशंस हैं, वहाँ पे डिसेबलिंग कंडीशंस हैं। अब अगर किसी के लिए डिसेबलिंग कंडीशंस हो तो मैं केस स्टडी के वे में भी इसको बता सकता हूँ। एक बच्चा जो गरीब फैमिली से आता है, वो बुक उठाता है जिस मैगज़ीन का नाम है योजना, ठीक है, वो किताब की दुकान से योजना चुराता है, और दूसरा बच्चा जो कि IAS ऑफिसर का या वेल टू डू फैमिली में से है, वो किताब नहीं चुराता। अब इसके पास कोई ज़रिया नहीं है पढ़ने का,
इसके पास तो जरिया है, रिच फैमिली से आता है, he is getting 30,000 40,000 rupees per month in Delhi, he can manage his expenses, he cannot. तो अब क्या ये क्राइम है तो क्राइम, लेकिन क्यों है ये क्राइम? इनइक्वालिटी। एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स भी नहीं है। एक तरफ नेता चारा खा जाता है इसीलिए वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, दूसरी तरफ सब सुविधाएं हैं, अगर आईएएस भी नहीं भी हुआ तो भी ब्रिटेन में कहीं ना कहीं सीट पापा दिलवा देंगे। तो आप इसको क्रिमिनल कैसे कह सकते हो? विक्टिम है, विक्टिम को सोलेस देने के लिए या मिटिगेट करने के लिए रेट्रीब्यूशन इज नॉट दी ओनली वे। रेट्रीब्यूशन को देखोगे तो फिर तो वो तो वही हो गया कि हाँ विक्टिम ने, कन्विक्ट ने ऐसा किया, जो आरोपी है, जो कन्विक्ट है, उसने ऐसा किया तो उसको सजा दो, जेल के पीछे डाल दो। इज इट गोइंग टू सर्व एनीथिंग इन द विक्टिम्स लाइफ? और फॉर दैट मैटर इज इट गोइंग टू हेल्प अदर्स of the victim convict's family do anything better in their lives? No, it is rather going to worsen the situation for a widow women who had no fault in this thing. ठीक है, we are creating social injustice, तो इसीलिए ये बातों को ध्यान में रखा जाता है। हाँ, विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे कन्विक्ट को 1000 बार सजा मिलके भी कभी शांति नहीं मिलेगी, विक्टिम की लाइफ में कोई रेपेरेशन नहीं होगी। हाँ, एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मेरे साथ इंसाफ हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी प्रेशियस। बट अगर हम टैंजिबली देखें तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए ये लीगल सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, as a political philosopher Charles D Montesquieu said that in the state of nature all men are born equal, but they cannot continue in this inequality, but they cannot continue in this equality. Society makes them lose it, and they recover it only by the protection of the law, positive protection or somewhere negative. The protection of the law to poor, to illiterate and weak is important to ensure equal justice. Legal aid is one of the means to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any person. ये जो आप कहना चाह रहे हो ना, देखो स्लम में जो लोग रह रहे होते हैं, स्लम से उनको उखाड़ दिया जाता है, ठीक है, दे आर evicted from the place of slum, and in the place of the slum a mall comes up. One day the erstwhile slum dweller comes and takes away the car from the mall. Who is responsible here? Who are you going to blame for this? समझ में आया? तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे रहती हैं, आप किसी का कोई लॉजिकल आंसर इसका नहीं है, तो ये हम समझेंगे सोशल जस्टिस में जब हम ये सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। जिनी कोएफिशिएंट अगर प्रॉपरली हमारा बैलेंस नहीं होगा, ज़ीरो की तरफ नहीं होगा, परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ नहीं होगा, तो ये समस्याएं इंक्रीज होंगी। जस्टिफाई इन्हें नहीं करना चाह रहा, बट येस पुलिस का काम तभी बढ़ता है जब पॉलिसीज़ गलत होती हैं। समझ में आया? पुलिस का काम बढ़ रहा है मतलब ऐसा क्राइम बढ़ रहा है, तो उसमें हम बाद में जाएंगे। लीगल एड इज फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फ्री लीगल एड, अगर कोई पर्सन अपने लिए कोई वकील हायर नहीं कर पाता, इफ आई एम नॉट एबल टू हायर एन एडवोकेट फॉर माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन, स्टेट प्रोवाइड्स मी द हेल्प ऑफ अ फ्री लीगल एडवाइजर, एडवोकेट। ठीक है, तो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एनेबलिंग देम टू एक्सरसाइज द rights given to them by the law. P.N. Bhagwati का क्या कहना है इस पे? That the poor and the illiterate should be able to approach the courts and their ignorance and poverty should not be an impediment in the way of obtaining justice. तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रियम्बल जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि what are the sources or articles that you can identify in the constitution for ensuring equal protection of laws in the Indian constitution, कौन कौन से ऐसे laws हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बताओ।
पढ़ो इसको, ठीक है, ये पढ़ोगे. This stuff has been so organized to enable you to answer these low hanging fruits in the prelims. Article 38, Article 14 preamble and Article 39A. So this is a part of directive principles. For now, just go through these things and we would be doing a detailed study of the directive principles in the relevant section. Right to free legal aid or free service is an essential fundamental right. Now, legal statutory provisions ensuring equal protection of laws in equal circumstances. Order 33 of the Civil Procedure Code provides in respect of the suit by indigent person. तो यहाँ पे ये दे रखा है कि equal protection of laws के लिए provides in respect of the suit a case filed by a poor person on the application to sue as a poor person. Once the application to sue as a poor person is being granted, the plaintiff shall not be liable to pay the court fee. गरीब आदमी को court fee पे करने की ज़रूरत नहीं है. And in case he is not represented by the pleader, by the lawyer, the court may, examining the circumstances, after examining the circumstances of the person, if the circumstances of the case so require, assign a pleader to him. Court फिर उसको एक pleader assign, lawyer assign कर देगा. This benefit has now been extended to the dependent of such a poor person as well. अगर उस गरीब आदमी की मौत हो जाती है तो उसका जो बच्चा है या उस केस का जो फॉलो अप करना चाहता है उसको भी. Similarly, Legal Services Authority Act has been enacted. Some of the things which are plain vanilla in language and understanding, I will not read them so as to save our time. This PDF has already been shared, right? Now, Article 15, 16, Article 14, any doubt? Any doubt in Article 14? This in Article 21, Saket, okay. जो मैंने ये बताया कि जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का फिनोमिना है एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए या मिटिगेटिंग के लिए, उसका मतलब यही है कि सिर्फ प्रोसीजरल इक्वालिटी नहीं बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी के लिए, ठीक है. तो समवेयर इट इज़ रिटन हियर, हमारे यहाँ पे प्रोसीजरल इक्वालिटी नहीं है कि हाँ ठीक है सलमान खान और बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग को एक साथ खड़े कर दिया और बोला कि देखो ये प्रोसीजरली इक्वल है, बात ख़त्म. नहीं, वी द लीगल सिस्टम strives to get into the circumstances of the life circumstances of the person who committed a crime, who committed the crime, और उस हिसाब से उन्हें कॉम्पेंसेट किया जाता है या फिर रिलैक्सेशन दी जाती है. इसको प्रोसीजरल जस्टिस नहीं कहा जाता, इसको सब्सटैंटिव जस्टिस कहा जाता है. जैसे गरीबों में से अंत्योदय अन्न योजना को बेनिफिशरीज को टारगेट करना, राइट. सिर्फ ये नहीं कि ठीक है गरीबों में 10-10 किलो राशन, 5-5 किलो राशन बांट दिया, नहीं. जो निहायती गरीब हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. तो ये क्या है, सब्सटेंस इक्वालिटी इन सब्सटेंस इज सॉट टू बी क्रिएटेड बाय द स्टेट. अगर सिर्फ इक्वालिटी क्रिएट करनी हो तो फिर तो हो जाएगा, फिर तो आसान है. सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्रिएट करने में प्रोसीजरल इक्वालिटी से हट के ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा जाना मुश्किल हो जाता है उस केस में. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट. आई होप आई एम क्लियर. सब्सटैंटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ यू कैन फील कि हाँ जस्टिस हुआ है, ठीक है. प्रोसीजरल होता है कि हाँ ठीक है गरीब है 10 किलो दे दो, बात ख़त्म. क्लियर. सो आर्टिकल 15,
आर्टिकल 15 सेज राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं. ठीक है, दीज आर द आर्टिकल्स विच टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स 14 to 18 we will see how and what are the titles or what is the essence of these articles. अगर कोर्ट खुद से सुओ मोटो लेकर जस्टिस किसी की फेवर में दे तो वो भी आर्टिकल 14 में आता है. यस, we'll cover that. Okay, Alok, while reading exceptions to equality we'll cover that, don't worry. It is going to come under article 15, 16 also, और 14 भी repeat होगा जब हम 14, 19 और 21 की बात करेंगे. The golden triangle. Okay, so don't worry. Now article 15, what does it say? Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Here it is written the state, clause 1. This is clause 1, article 15 clause 1. The state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of. Be very careful about the words which are highlighted, which are in the different color than black. So ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे क्लॉज 1 सिर्फ स्टेट पे अप्लाई हो रहा है. क्लॉज 2 में लिखा है सिटीजन, तो वो सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई हो रहा है. क्लियर? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. दैट मीन्स आर्टिकल 15 is not applicable or is not available to foreigners. Clear? These articles have been, these PPT slides have been designed in a manner that you should be able to keep an eye on the prelims oriented things as well. ध्यान से पढ़ना. Article 15 clause 1 is applicable only to the state. State नहीं कर सकता किसी के खिलाफ पक्षपात on the grounds only of religion, race, कोई black है या white है, caste, sex or place of birth or any of them. इसका क्या मतलब है कि स्टेट यदि चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन प्लस सम अदर एस्पेक्ट, बट स्टेट यदि चाहे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और रेस. ठीक है, अगर गुरिल्ला वॉरफेयर में नक्सलाइट्स के खिलाफ स्टेट को किसी सिपाही को हायर करना हो, और क्योंकि रात में ये वॉरफेयर होता है, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर, तो जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ब्लैक है, एफिशिएंसी इन दी आर्मी आर्म्ड सर्विसेज के बेसिस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. कास्ट, कुछ पर्टिकुलर टेम्पल्स हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट के ही पुजारी हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अलाउड हैं. विमेन आर प्रूवन टू बी सॉफ्ट एट हार्ट. ठीक है, विमेन आर प्रूवन टू बी सॉफ्ट एट हार्ट, काइंड हार्ट, इसीलिए जो फीमेल नर्सेज हैं उनके लिए पोजीशंस रिजर्व करी जा सकती हैं. क्लियर? आर्मी में अगर कोई प्रूवन रिसर्च आती है जो ये बताती है कि हाँ मेन आर more efficient than women in armed services in the battleground, तो yes, reservation सही है on the grounds of efficiency. ठीक है, अगर सिर्फ इसीलिए करना है कि कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो गलत है, लेकिन अगर रिलीजन के साथ में उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ही प्रीस्ट्स वहाँ पे आए हैं, वहीं पे उस टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फिर ठीक है. ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रिलीजन के आधार पे किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, स्टेट वो नहीं कर सकता. कोई और करना चाहे तो करे. आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिर्फ स्टेट पे प्रतिबद्ध लगा रहा है, सिर्फ स्टेट पे प्रोहिबिशन लगा रहा है. क्लियर? Read only part 1 carefully. Skip out on part 2 for now. फोर्टीन में होगा तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है,
करो फटाफट, रीड करो प्लीज। विल टॉक अबाउट सबरीमला इन आर्टिकल 25। सबरीमला टेम्पल के बारे में आर्टिकल 25 के अराउंड बात होगी। प्लीज रीड। डन? एनी डाउट? ओके, एक बार वो आर्मी वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए। आर्मी वाला एग्जाम्पल ये है कि अगर गुरिल्ला वॉरफेयर में, नेक्सलाइट्स के अगेंस्ट कोई वॉरफेयर में पीपल विद ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन आर नीडेड, ठीक है। और आर्मी में अगर होम मिनिस्ट्री ये कहे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो डार्क मैन हैं वो कम विजिबल होते हैं इन दी नाइट, तो इसीलिए उनके लिए ही ये पोजीशंस रिजर्व्ड हैं, तो ये जस्टिफाइड है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, जो आर्मी में अगर ये बताया जाए कि मेन आर मोर सुटेबल फॉर दी बैटल ग्राउंड पोजीशंस, ठीक है, वॉरफेयर पोजीशन में अगर वॉर फ्रंट में विमेन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा बिकॉज ऑफ नेशनल ऑनर, इफ़ विमेन वुड बी मेड एज अ होस्टेज, अगर कोई एलियन फोर्सेस हमारी महिलाओं को अगर बंदी बना लेंगी तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, उस बेसिस पे विमेन को बैटलफील्ड रोल्स ना दिए जाएं, तो ये सही है। लेकिन सोलली इसलिए बिना कोई एफिशिएंसी क्राइटेरिया बताए अगर विमेन को इससे बैन किया जाएगा तो वो गलत है। क्लियर? डोमिसाइल आई विल एक्सप्लेन दिस। आकांक्षा, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हाउ एग्जैक्टली। सो अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस इक्वल राइट्स वाला फंडा चेंज हो जाता है। गौतम, व्हाट इज योर डाउट? देन द केस ऑफ सबरीमला इज राइट। तो अभी नहीं, 25 के अराउंड इसको आंसर करूंगा गौतम। प्राची, एक बार बता दिया, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इक्वल राइट्स वाला फंडा चेंज हो जाता है। यस, ओनली का मैं बता रहा हूँ कांशा, हाउ द प्रीस्ट ऑफ अ स्पेशल कास्ट इज राइट इन द टेम्पल। अगर उस डेटी ने, अगर उस लॉर्ड ने जिसके नाम पे वो टेम्पल बनाया, उन्होंने या उनके नाम पे कोई 1400 साल पुराने स्क्रिप्चर्स थे, उसमें लिखा है कि पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करने वाले वो प्रीस्ट ही, जैसे नेपाल में एक टेम्पल है, वहाँ पे आज भी इंडियन प्रीस्ट, एक पर्टिकुलर फैमिली के प्रीस्ट ही जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, ठीक है। वहाँ पे पर्टिकुलर प्रीस्ट ही जॉब पे रखे जाते हैं उस द्वार की पूजा और व्यवस्था के लिए, तो बाकी के किसी भी जात के आदमी को उस द्वार की भगवान के पास भोग लगवाने की परमिशन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एक अलग चीज़ है। आई एक्सप्लेन दिस। देखो, एक आर्टिकल नहीं है, ये सारे आर्टिकल जो है ऑर्गेनिकली इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप ये बोलोगे सारा कुछ अभी समझा दूँ तो आर्टिकल 21, 25, 26, 27 इंटर रिलेटेड हैं इसके साथ। रिलीजन का मैटर आ गया तो आर्टिकल 25 के बिना हम इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगेंस्ट, अब यहाँ पे द मीनिंग ऑफ वर्ड ओनली इज religion in isolation cannot be made a criteria. Religion in association with something else can be made a criteria. समझ में आया? बात समझो। अगर ये बताया जाए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और उस कम्युनिटी के लोगों को ये बोला जाए कि एक पर्टिकुलर वायरस है जो उस कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उस कम्युनिटी के लोगों को ये बोला जाए कि आप लोग उस एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को बीमारी हो सकती है, जस्टिफाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक और एक रीज़न अटैच हो गया। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो अगर
कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो वेजिटेरियन फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और एक ऐसा वायरस है जो वेजिटेरियन है उनको ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो फिर डॉक्टर्स की टीम ने अगर इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ वेजिटेरियन लोग उस एरिया में नहीं रहेंगे क्योंकि उनसे वायरस ज़्यादा फैल जाएगा, वो लोग अफेक्ट हो सकते हैं या औरों को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि रिलीजन के साथ एक और क्राइटेरिया ऐड हो गया, क्लियर? रेस। अब ये माना जाए जो गुरखा एज अ रेस है वो आर्मी में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वफादार हैं, लॉयल हैं, तो गुरखास को रिजर्वेशन दी जा सकती है कुछ ऐसी सेंसिटिव पोजीशंस पे जहां पे हमें खतरा है। गॉट इट? सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैं डोमिसाइल पे आ रहा हूं। किसी भी एक रिलीजन को इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि विमेन प्ले अ बेटर रोल इन द जॉब ऑफ हॉस्पिटल नर्सेज, तो उनका केयर टेकिंग और अफेक्शनेट नेचर अच्छा काम करता है, उनका काइंड हार्ट अच्छा काम करता है नर्सेज की जॉब के लिए, तो विमेन को यूज़ किया जा सकता है, और सिर्फ विमेन के लिए ही नर्सेज की काइंड हार्ट वाली जॉब्स को रिजर्व किया जा सकता है। क्लियर? मेल उसमें अलाउड नहीं होंगे। अगर कोई सरकारी एयरलाइन है, एयर इंडिया है, अगर वो एयर हॉस्टेसेस के रोल के लिए सिर्फ फीमेल पोजीशंस को रिजर्व रखना चाहता है, तो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि दी पीपल विद फीमेल सेक्स आर अलाउड। नो, उनको ये बताना पड़ेगा पीपल विद फीमेल्स आर बीइंग these positions are reserved only for the female because of the efficiency reason that females have been proven to be better at the job of air hostess or hospital medical nurses. समझ में आया? अब with valid reason state can combining one reason. I'm having tremendous problem in connecting with the video. My locality has geo connection issues and geo fiber. Okay, what's your name? Rubina, it's fine. Okay. क्लियर? मैंने 3-4 एग्जाम्पल इसलिए दे दिए कि ये समझ में आ जाए। अब दूसरा जो क्लॉज है, क्लॉज 2, वो ये कह रहा है नो सिटीजन शैल on the base of birth or any of them be subjected to. I as a citizen shall not be subjected to any kind of disability restriction with regard to access to shops because of my religion, my race, my caste. ठीक है? ये जो क्लॉज 2 है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों पे एप्लीकेबल है। स्टेट के ऊपर क्लॉज 1 एप्लीकेबल है। किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं बनाया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP के बेसिस पे। भूल जाते हैं ना हम कभी कभी, RRCSP याद रखना है। क्लियर? अब दूसरा समझो, डोमिसाइल क्या होता है। कहने को तो ये सब दे दिया, ठीक है, कि प्लेस ऑफ बर्थ और ये सब। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर मैं जाऊं तो मैं वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता क्योंकि वहाँ पे स्पेशल लॉ चलता है। वैसे ही अगर मैं, ये कहने को दे रखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जो कि अब तेलंगाना है, तेलंगाना में एक थियोरी है जिसे हम सन्स ऑफ सॉइल थियोरी कहते हैं, माटी के लाल, ठीक है। वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या हो रहा था कि आंध्र प्रदेश के लोग थे वो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव थे, और तेलंगाना और बाकी के जो रीजन्स थे वहाँ पे जो रीजन्स हैं उनके लोग ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो जब कभी आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज निकलती थी तेलंगाना की वैकेंसीज के साथ, तेलंगाना व्हेन इट वाज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट, तो दोज वैकेंसीज वर कॉर्नर्ड बाय द progressive sections of the Andhra region. That is why the Telangana region was given an assurance that if there are 4 vacancies of PCS officers from the Telangana region, emanating from the Telangana region, those officers would be deployed or would be posted in the Telangana region. Those 4 positions can be contested by, can be
the four persons would be chosen from the Telangana region only. People who are domiciled in the Telangana region of the Andhra Pradesh state can only apply for those 4 positions. Got it? If there are 10 positions, domicile requirement is there for 4. Remaining 6 are general category. Anybody from Andhra Pradesh can apply for them. But these 4 would go only to the Telangana. ये तेलंगाना में अलाउड है. स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज की जो जॉब्स हैं वो उन्हीं डोमिसाइल के लोगों को मिलेंगी. जम्मू एंड कश्मीर की जो जॉब्स थी वो पहले उन्हीं जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग ही उसके लिए अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, अभी उसमें कुछ कुछ डायल्यूशन हुआ है जो कि हम बाद में समझेंगे. अभी के लिए ये समझ में आया. अब एक्चुअल में क्या होता है, इफ आई एम स्टेइंग इन पंजाब, if I do not have the matriculation certificate in which Punjabi is written as a language which I had opted during my 10th standard, तो स्टेट PCS जॉब के लिए मुझे जब अप्लाई करना है तो ये कहीं नहीं बोला जा रहा कि आप डोमिसाइल्ड हो पंजाब में या नहीं. इसका इनडायरेक्ट मेथड लगाया जा रहा है. क्या इनडायरेक्ट मेथड लगाया जा रहा है? दैट यू शुड हैव स्पोकन और यू शुड हैव टेकन पंजाबी एज one of your subjects in the matriculation. You should have a knowledge of Punjabi so that you can understand the language of the people where you are going to be posted as a civil servant. ठीक है, इनडायरेक्टली एक हथियार बना लिया कि पंजाब में जो एमिनेट हो रही हैं पोजीशंस वो पंजाबी लोगों को ही जाएं, वहाँ के लोगों को ही जाएं. अब मैं अगर तमिलनाडु का हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं वहाँ पे पंजाब में जाऊँगा पंजाबी सीखने के लिए, राइट? Obvious है कि I would not have taken Punjabi as my subject in the state of Tamil Nadu when my schooling has happened in the state of Tamil Nadu. अगर मैं बंगाल से हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ पे तमिलनाडु सीख के आऊँगा कि हाँ मुझे पता था कि 10वीं क्लास के बाद मैं सीधा तमिलनाडु स्टेट PCS एग्जाम देने जाऊँगा. तो दिस इज बीइंग क्रिएटेड एज एन अननेसेसरी ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ रिलेटिवली और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. समझ में आया? इसका कोई आधार नहीं है. डायरेक्टली स्टेट ये नहीं कह सकता कि पोजीशंस इन द पंजाब PCS वुड गो ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब. बट येस, लैंग्वेज, बिकॉज इट विल हेल्प इन योर बिकमिंग एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट, लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया कुड बी अडॉप्टेड. समझ में आया? Ground of being improperly represented is if every time, now I'll tell you, ground is in the UPSC civil services exam, people from Hindi medium are not getting selected. I mean, the result is not as good as it used to be in 2008. Criteria of determining that they are underrepresented is that if out of 10 positions every time, all the 10 out of 10 are bagged by the people of Andhra region where there are better schools, better employment opportunities. So naturally we can conclude that Telangana people are not able to be they are not able to enter the public services of the state. This will be better clear after Article 16. Is that clear? ठीक है, तो ये डिस्टिल क्लियर सारी ये चीज़ें होनी चाहिए. जो चीज़ें रेड में दे रखी हैं उसको आप रेड में ही पढ़ोगे. ठीक है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन. Can not discriminate against any citizen. However, state can discriminate against the aliens on the basis of race. If they are Americans, Americans are a race. Americans would not be allowed to stay here. Africans would not be allowed to stay here. ठीक है, और foreign Christian missionaries would not be allowed because they are because they are disturbing the demographic balance of that area. Demographic मतलब वहाँ पे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है. अगर फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, तो आर्टिकल 15 स्टेट को नहीं रोकेगा, क्योंकि आर्टिकल 15 सिर्फ स्टेट को रोकता है कि सिटीजन्स के खिलाफ आप ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा सकते. नॉन सिटीजन्स पे आप लगा सकते हो.
क्लियर है? आगे चलें। आज क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल टुडे एंड आई डोंट वांट टू स्किप आउट ऑन द DNA because my DNA students would feel that just because the paid courses I've started skipping out on the DNA. Clear? Please understand this. So I have to sleep on time today thoda sa. Now access to shops, public restaurants, hotels and palaces of public. तो ये नो सिटीजन, अब थोड़ा सा इसको खुद से पढ़ोगे। अगर कोई, मैं एक दूसरा चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ नहीं लिखी गई, क्लास नहीं लिखी गई, RRCSP। अगर कोई गरीब बच्चा है, मैं जातिवाद में नहीं बिलीव करता, लेकिन फिर भी अगर कोई गरीब बच्चा है और वो सो कॉल्ड SC कैटेगरी को बिलोंग करता है, अगर उसने गरीब बच्चे ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो कोई भी होटल हायत या कोई भी ऐसा होटल उसे एंट्री से बैन कर सकता है, एंट्री देने से बैन कर सकता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज एन SC और ST, बट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स। समझ में आया? तो he seems to be not being able to pay the hotel charges, the dining charges in the hotel. इस बेसिस पे कोई भी होटल उसे बैन, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रख सकता है। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड की जो प्लेट लगी होती है हर ऐसे रईसों वाले दरवाजे पे। समझ में आया? पब्लिक रेस्टोरेंट्स, द रेस्टोरेंट विच इज जनरली ओपन टू वन एंड ऑल, दैट इज अ पब्लिक रेस्टोरेंट। जरूरी नहीं कि पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, नो। इफ इट इज अ प्राइवेट CCD और एनी अदर प्राइवेट कॉफी शॉप, दैट इज अ पब्लिक रेस्टोरेंट। ओके, पब्लिक होटल्स जनरली ओपन टू वन एंड ऑल, एवरीवन, किसी को रोका नहीं जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं इतनी ससिंक्टली डिटेल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हैं। इट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ explained everything in such a descriptive manner. Why? Because we were a country afflicted with such type of phenomena. Use of wells, bathing घाट्स पे लोगों को जाने से रोका जाता था कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी का आदमी नहाएगा और ये सब, ठीक है। पैलेसेस और पब्लिक रिजॉर्ट्स, बी क्लॉज क्या कह रहे हैं? देखो, क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, चाहे प्रॉपर्टी, क्लॉज 2 सब क्लॉज A, चाहे प्रॉपर्टी सरकार के पैसे से मेंटेन हो रही है या नहीं, सभी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, कहीं पे लिखा है कि होली और पार्टली मेंटेन, लेकिन क्लॉज B में लिखा है कोई भी ऐसा कुआं, नाला या बेदिंग घाट या रोड जो कि सरकार के पैसे से पूरी तरह से चलता हो या 15%, 50%, 25% भी पैसे यदि सरकार से लिए गए हों, तो भी उस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगाया जा सकता। समझ में आया? तो भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लगाना गलत होगा। चाहे सरकार पूरी आर्थिक मदद, चाहे कंप्लीट फाइनेंशियल मनी, द मनी थिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्टेट, even if a state is contributing 10% of it, 2% of it, once you accept the financial aid from the state in the maintenance of these bathing ghats, wells and all, then you have to apply, you have to allow everyone to enter that. You cannot apply any kind of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. However, you can apply the restriction on the basis of a person being poor or rich. Clear? समझ में आया? ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। देन जो होटल राइट टू एडमिशन लिखते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, नहीं, क्योंकि वो ये थोड़ी लिख रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पे एडमिशन अलाउड नहीं है, वो ये लिख रहे हैं कि भैया ये बिल पे करने वाला नहीं लगता, ठीक है।
अब आप देखोगे एक स्ट्रेंज फिनोमिना सोशियोलॉजी में, सोसाइटल इश्यूज में हम ये सब पढ़ेंगे। मैकडी के गार्ड को आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, वो जब कोई बच्चा, गरीब बच्चा जो स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ स्ट्रीट हैं, उनको एंट्री देने से पहले उनको बोलता दिखाओ तुम्हारे पास 35 रुपये हैं, बर्गर लेने तो जा रहे हो, 35 रुपये हैं कि नहीं। वंस द चाइल्ड मेक्स हिम काउंट कि ये देखो 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 35 रुपये हैं, देन द गार्ड अलाउज हिम टू गो इनसाइड एंड देन गार्ड वुड बी कीपिंग अ विजिल आई ऑन हिम कि वो सॉस के जो सैशे हैं डेल मोंटे के वो कितने उठाएगा, नैपकिन उसको कम दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड नहीं है, इस पर भी डिस्कशन रहेगी कि क्यों कवर्ड नहीं है। यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक के लिए जो चीज़ें ओपन हैं वो ओपन ही रहनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा बेदिंग घाट है जो सिर्फ विमेन के लिए है तो वो विमेन के लिए है, ऐसा नहीं है आप यहाँ वहाँ पे जाके बोलोगे कि नहीं मैं भी वहीं नहाने जाऊँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे रखा है, नो, राइट, पिट के भी आओगे फिर। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो कोई भी फंडामेंटल राइट उठा के देखना, मोर ऑफन देन नॉट, इनवेरिएबली क्लॉज 1 और क्लॉज 2 गिविंग इन नेचर एंड दे गिव यू द फंडामेंटल राइट, पॉजिटिविटी का एलिमेंट है। क्लॉज 3 या क्लॉज 4, कुछ कुछ आर्टिकल्स में तो क्लॉज 1 राइट देता है, क्लॉज 2 ले लेता है। क्लॉज 1 इज गिविंग इन नेचर, क्लॉज 2 इज नेगेटिंग, या फिर क्लॉज 3। अब यहां पे ये लिखा जा रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन। विमेन एज अ सेक्स के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है। बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम के लिए अलाउड है, ठीक है। तो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 आर नेगेटिंग इन नेचर। क्लॉज 1 और 2 जेनरलिटी क्रिएट कर रहा है राइट की, दीज राइट्स आर इन जनरल गिवन टू एवरीवन, बट क्लॉज 3 and 4 आर गिविंग द स्कोप टू द स्टेट, that state can ignore whatever has been said in clause 1 and 2 and can go ahead to make some special provisions for the upliftment of the relatively disadvantaged sections of society. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। यानी कि स्टेट जो है कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है कास्ट को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए, बाकियों के लिए नहीं। डन। तो ये क्या है, जेनरलिटी को स्पेसिफिसिटी में चेंज कर रहा है कि ठीक है स्पेसिफिकली इनके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। क्लियर? पढ़ो इसको एक बार, इंटरनलाइज करो अभी के अभी। डन। चलो आगे। एनी डाउट? फोर्थ पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। प्रियंका आपका क्या क्वेश्चन है?
Positive discrimination as we call it. Boys who are not wearing shoes not allowed to enter. Yes, हाँ ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत वेरी नाइस। देखो कपल एंट्री, अब एक दो चीज़ें मैं कोई अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, फेयर एंड लवली, ठीक है। जब डिस्को में कहीं जाते हो तो क्या करते हो, कपल एंट्री, गर्ल्स की एंट्री फ्री। इज इट नॉट इज इट नॉट लाइक कमोडिफाइंग वुमेन? एंड द स्ट्रेंज थिंग इज द गर्ल्स दे एंजॉय इट। मतलब वहाँ पे जो हाई क्लास बन जाता है ना, वहाँ पे गर्ल्स की एंट्री फ्री। इज इट नॉट लाइक मॉडिफाइंग द गर्ल्स आउट देयर आउटसाइड द डिस्क? भाई गर्ल्स की एंट्री क्यों फ्री? मैं कड़े शब्दों में अगर ये बोलूँ, कोई दारू है या बॉटल है या क्या? समझ रहे हो बात को? कपल एंट्री फ्री है, चलो ये समझ में आता है, बोथ ऑफ देम आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। मेल एंड फीमेल अगर कोई दोनों जाते हैं तो वो ठीक है। मेल को स्टैग एंट्री को चार्जेबल बनाया जाता है, फीमेल एंट्री अलाउड है। ऐसा क्यों? वी समटाइम्स अंडर द नेम ऑफ फ्रीबीज वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज रॉन्ग थिंग्स, है ना। हर कोई करता है ये कि चलो ठीक है कपल एंट्री है, फीमेल एंट्री फ्री, तो ये डिस्कोर्स के खिलाफ केस किया जा सकता है ना। सो दिस इज देयर। नाउ कमिंग हियर, जस्ट 1 मिनट, आपके डाउट्स देख लेते हैं एक बार। पुअर एंड का फैक्टर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस पर, अच्छे से लिखा करो नरेंद्र। देखो मोदी जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपकी भी होनी चाहिए। नाउ हमारे एरिया में डोमिनोज मैकडी वाला ऐसे नहीं करता, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी नाइस। बॉयज़ नॉट वेयरिंग शूज़ अलाउड टू एंटर पब, then can they be sued for practicing discrimination? Yes, you can sue them, but it requires a lot of time, है ना। तो आपने ये पब वाला एग्जाम्पल मेरे को याद दिला दिया। Then private schools who do not receive any government aid can discriminate on the basis of caste. Then the private schools which do not receive, नहीं, अब देखो वहाँ पे दूसरा नो सिटीजन वाला भी तो लिखा है ना, क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 भी तो लिखा है यहाँ पे, क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज 2 सब क्लॉज ए लिखा है यहाँ पे, समझ में आया? अक्षय, द सेम आंसर गोज फॉर योर क्वेश्चन, औरोश्री एंड अक्षय। क्लियर? लॉ इम्पोजिंग मोनोगैमी फॉर हिंदूज बट लीविंग द मुस्लिम्स फ्री टू हैव फॉर, देखो मोनोगैमी उस पर लगाना, अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि जिस बैकड्रॉप में हमारी इंडिपेंडेंस आई, हमने जो 1947 में आज़ादी पाई, उस टाइम पे मुस्लिमों को ऑलरेडी इंडिया के जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, ब्लड शेड एंड ऑल, और मुस्लिम्स वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन इंडिया। इसीलिए हिंदू लॉ का रिफॉर्म किया गया लेकिन मुस्लिम लॉ का नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है। प्रतीक, वेरी नाइस। अभी वो क्वेश्चन हो चुका है ना आप वाला, तो वी हैप्पीली एक्सेप्ट ऑल दिस। इंस्टेड ऑफ EBS कैन इट बी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कंसिडर्ड? येस, इट इज, थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, बट fourth point is not clear. Fourth point simply is saying that state can make special provisions for scheduled castes, even if the word caste is there in RRCSP. ठीक है, father of a Hindu minor is the only guardian and the mother is given inferior position in our, yes, this is a reality. What is your personal opinion? Should India practice negative secularism? Yes, I would say yes, because insofar as we will talk about the judgment of the Supreme Court, till the time religion is being used as a you can say as a means to solicit votes elections में जीतने के लिए, advantage लेने के लिए। तो on 3rd of January 2017, Supreme Court gave a new year gift to the people who were seeking electoral reforms. We'll talk about that. A candidate or his campaigner cannot cite religion in the elections for
कैनवेसिंग दी वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उन लोगों को ये नहीं कह सकता देखो मैं तुम्हारी बिरादरी से हूँ मुझे वोट दो, नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखो मैं तुम्हारी बिरादरी से हूँ, ठीक है, मुझे वोट दो। या अगर मैं एक्स कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरा जो एक पर्टिकुलर विलेज में जो वोटर बेस है वो वाई कम्युनिटी का है, तो मैं स्टार कैंपेनर को ले आता हूँ, किसी हेमा नाम की लेडी को, और ये बोलता हूँ कि आप वाई कम्युनिटी को अपीज़ करिए, आप उनके रिलीजन की बातें करिए। अगर मेरे स्टार कैंपेनर ने भी ऐसे बातें करी तो मुझे बैन कर दिया जाएगा, मेरा इलेक्शन जो है, मेरा नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये समझना, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ चीज़ें चल रही हैं। नेगेटिव सेक्युलरिज्म वुड बी बेटर बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट इन द नेम ऑफ रिलीजन, राइट। बट उसका डिसएडवांटेज फिर माइनॉरिटीज़ को होगा। अभी स्टेट मेजॉरिटीज़ को तो कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल हु आर ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन इन इंडिया, they can already make their religious institutions, they can indulge in, they can themselves donate, ठीक है। बट माइनॉरिटीज के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, राइट। मैनिफेस्टो में रिलीजन का कुछ मेंशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको अच्छे से स्टडी करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन नहीं है लेकिन कैंडिडेट के ऊपर बैन है। यस अक्षदा, व्हाट इज योर क्वेरी? Social and educational backward people in SC ST get reservation then once they come out of these circumstances। देखो reservation, religion and third R is also there। ये जो है touchy topics हैं, we'll talk about them, don't worry, ठीक है। Third R I'll reveal later। Reservation and religion are such matters in India कि किसी को बोलो कि आर्टिकल 14 की बात हो रही है वो फिर भी रिजर्वेशन बीच में ले आएगा, आर्टिकल 15 की बात हो रही है फिर भी रिजर्वेशन बीच में आ जाती है, राइट। सो वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, वी हैव टू शेड दीज प्रेजुडिसेस। विल टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑफ मी एंड माई फ्रेंड हु इज इन टू IPS नाउ अ डेज। ही बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, ST कैटेगरी। ही वॉज ऑलरेडी एन IITN, IIT रुड़की से पास आउट थे वो, तो उसके बाद उन्होंने जॉब करी, फिर उसके बाद रिजर्वेशन। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुका है दोबारा से उसे खुद को फॉरगो करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। नाउ व्हाई डॉटर इन लॉ इज़ नॉट अ को पार्टनर? यस, डॉटर इन लॉ इज़ नॉट अ को पार्टनर बिकॉज डॉटर इन लॉ का पता नहीं है ना कौन है, मतलब जो नेचुरल ब्लड रिलेटिव्स हैं उन पे ही को पार्टनर वाला लॉ अभी तक एप्लीकेबल है, ठीक है। डॉटर इन लॉ को ऑटोमेटिकली को पार्टनर नहीं माना जाता। मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, पूछ रहे हो लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेबल स्ट्रिक्टली नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम इसे टच करेंगे। देखो अगर कोई ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी, father, then this is girl and this is boy, ठीक है। जो प्रॉपर्टी फादर ग्रैंडफादर की थी वो अपने आप ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी 50-50 में, ग्रैंडफादर के पास में 100 करोड़ थे तो 50 करोड़ गर्ल के हैं, 50 करोड़ बॉय के। अगर ग्रैंडफादर हैज़ नॉट लेफ्ट एनी विल, ठीक है, 50 करोड़ बॉय के, फादर बीच में है मीडिएटर, बट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में फादर कुछ अड़चन नहीं पैदा कर सकते। अगर ग्रैंडफादर ने अपना नॉमिनी फादर को लगाया तो ठीक, समझ में आया, अपना नॉमिनी फादर को अपना ये बोला कि ही इज़ माई लीगल हियर, देन ठीक। ग्रैंडफादर अपॉइंटिंग हिज ओन सन एज द लीगल हियर, डिक्लेयरिंग हिज ओन सन एज द लीगल हियर। इफ नॉट देन ग्रैंडफादर्स वाइफ यानी कि ग्रैंड मदर विल बी द लीगल हियर, एज हैपेंड इन धीरूभाई अंबानी केस। क्लियर? जस्ट 1 मिनट गाइस। समझ में आई ये चीज़? तो ये चीज़ है। अब बॉय जो है, अगर फादर ने अपने दम पे
मान लो कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करी, वेल्थ अर्न करी इन हिज एंटायर लाइफ स्पैन. इट इज़ फादर्स प्रॉपर्टी, फादर कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन द मैनर इन विच ही लाइक्स. अब आप ये कह रहे हो कि बॉय की अपनी जो प्रॉपर्टी है, बॉय अगर अपनी वाइफ को देना चाहता है तो वो ठीक है. ठीक है, फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में डॉटर इन लॉ यानी कि बॉय की बेटे की वाइफ में कोई लेना देना नहीं होगा. क्लियर? अगर फादर अपनी विल में ये लिख के जाएं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे को देना चाहता हूं तो गर्ल का कोई हक नहीं है. इफ अ फादर हैज नॉट लेफ्ट एनी विल ओनली देन इज द गर्ल एंटाइटल्ड टू. तो ये ज़रूरी नहीं है कि डॉटर है तो ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड है. यस, ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड है उस केस में जिस केस में फादर ने विल नहीं छोड़ा. समझ में आया? Saket, can't we see the fourth point as a positive point? Yes, it is a positive point. What I am trying to say is, अभी आप आर्टिकल 19 में देखोगे, it is very much up, it is rather the positive point only. ठीक है? Yes. Succession law differs in inherited, self-acquired and property which is willed. जिस प्रॉपर्टी की विल है उस पर डिफरेंट हो जाएगा. उसमें तो फिर वो पर्सन अपनी विल एक्सप्रेस करके जा रहा है. दिस को-पार्सनरी लॉ और इनहेरिटेंस लॉ comes into picture if a person has not left the will. Clear? Yes. ठीक है आकांक्षा, ये rather positive ही है. Single person cannot adopt a female child. Is this the discrimination? Yes. For the female child के वे से single person, single man cannot adopt a female child. This is under Protection of Children from Sexual Offences Act. Fourth point is good. Yes, it is to be read in a positive manner, but all that I'm trying to explain you is some of the rights, they negate the generality and convert it into specificity for upliftment of particular sections of society. Sir, was Article 15 basis for abolishing? Yes. Article 15, Article 21 was the basis for declaring Section 377 as unconstitutional. Right? क्या रिफॉर्म कराना है आपको साकेत? So have we done any other doubts? Don't ask doubts for the sake of it, please, without pinpointing any doubt or anything. So today I would like to wind up the class a little early, guys. ठीक है? तो ये सारा आप पढ़ोगे. PDF must have been uploaded already. Did you get the PDF of today's class? डॉटर इन लॉ वाला नहीं हो सकता. डॉटर इन लॉ वाला मैंने रीज़न बता तो दिया. आपको जो लग रहा है वो इतना आसान नहीं है. Why do in some places daughter-in-law has to touch the feet of her in-laws, but in inverse conditions son-in-law makes his in-laws mainly. देखो, you are to be the torch bearer of these kind of reforms, right? थोड़ा सा लेवल एलिवेट करो अपने डाउट्स का प्लीज़. ये सब तुम्हें पता है, ठीक है? अब यहाँ पे कानून क्या करेगा, मैं अब सिंपली इस पे पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ तुम्हें. GS पेपर 1, ठीक है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स की बात करता है. GS पेपर 2 इन सोसाइटल प्रॉब्लम्स की लीगल टैंगल से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता है. जैसे कि खप पंचायत द्वारा सुनाए गए डिक्टेट्स, कैंगरू कोर्ट्स के डिक्टेट्स. अब the extent to which social flaws could be rectified by the laws, there is a limit to it. समझ में आया? लॉ सारी कुरीतियों को समाज की दूर नहीं कर सकता. Social flaws can be rectified up to a certain extent. We the society as a society we have to do these things. GS पेपर 3 की कुछ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी. GS पेपर 2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनके समाधान ढूंढे जाते हैं. दिस इज हाउ द सिलेबस कैन बी
लुक दैट, दिस इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। सोशल प्रॉब्लम को कहाँ तक चेंज कर लोगे? एक क्रिमिनल को आप लॉ में भेज दोगे, ठीक है, सजा दे दोगे। वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल इज द नॉर्म इन इंडियन सोसाइटी। अब उसको आप बैनिश करोगे थ्रू आउट हिज लाइफ और वो और ज़्यादा क्रिमिनल होते चले जाएगा। आप सोशल प्रॉब्लम की किसको सास बहू को पैर छूने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें देखो, लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज नाउ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है स्मृति ईरानी मैम को, जैसे आप देखते हो ना बड़ी बड़ी एकेडमीज आजकल बड़े बड़े स्टार्स को लेके आ रही हैं, मैं उन एकेडमीज से अनुरोध करूँगा कि किसी दिन स्मृति ईरानी मैम को लेके आएँ और एक लेक्चर होगा हमारा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। इट विल बी शेयर्ड बाय मी राइट आफ्टर द क्लास, राइट आफ्टर आई एंड दिस सेशन, ओके सृष्टि। PDF for both these classes will be shared right away. Current affairs has been shared, I think so. Polity and economy will be shared. ठीक है। All right. Thank you for today, guys. I'll share this before leaving from the office. Priya, I'll answer your queries tomorrow because today I could not follow my routine. I'll be here by 8 a.m., 7:30 or 8 a.m. Tomorrow, and then I'll be able to answer your queries, the pending queries, okay? Telegram and elsewhere. All right. Thank you, everyone. Good night, guys. Thank you, guys.